Dear student, today I will be discuss two sub-content of the chapter Rebels and the Raj. First, role of peasants, talukdars and jamindars, especially in the area of Awadh during revolt 1857, and second, vision of different social groups. In 1851, Governor General Lord Dalhousie described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. 5 years later, in 1856, the kingdom was formally annexed to the British Empire. The British annexed Awadh on grounds of maladministration and wrongly assumed that the Nawab was an unpopular ruler. On the contrary, he was greatly loved, and his departure from Lucknow was marked by widespread grief and sorrow. When the Nawab was removed, it brought an end to court and its culture. This emotional grief of the people was aggravated by immediate material losses. Awadh's annexation led to the dissolution of the court and its culture. A whole range of the people, musicians, dancers, poets, and artisans lost their livelihood. As a historian said, at the loss of Awadh, the life was gone out of the body, and the body of this town had been left lifeless. The annexation of Awadh to the British Empire not only displaced Nawab Wajid Ali Shah but also dispossessed the talukdars of the region. Earlier, the talukdars controlled land, forts, and power in the countryside. They also enjoyed autonomy as long as they accepted the suzerainty of the Nawab and paid the due revenue. The big talukdars had about 12,000 foot soldiers, but the small talukdars had about 200 foot soldiers. The British land revenue policy further undermined the position and authority of the talukdars. The 1856 summary settlement was based on the belief that the talukdars were interlopers with no permanent stakes in land. Thus, this settlement sought to remove talukdars wherever possible, and the number of talukdars came down. Many talukdars of southern Awadh lost more half of the total number of the villages they had previously held. The grievances of the peasants were carried over into the sepoy lines, since the vast majority of the peasants were recruited from the village of Awadh. Low wages, ill treatment by the British officers, difficulty in taking leaves, and the issue of the grist cartage, among other, intensified their discontent. Most of the peasants
were not happy, as most of them were over assessed. At some places, the increase in revenue was from 30 to 70%. It resulted in the breakdown of the entire social system. The grievances of the peasants also had an effect on the role of sepoys, as most of the sepoys were from rural areas. They got very low salaries and faced difficulty in getting leaves, so they were also discontent and dissatisfied. This aggravated the already tense situation in Awadh, as all the talukdars and peasants were loyal to the Nawab. They fought against the British, so there was an intense and long lasting revolt against the British in Awadh. Thus, a chain of grievances in Awadh linked the peasants, sepoys, and the common people. In different ways, all came to identify British rule with the end of their world. Thus, more than any other place, the revolt became an expression of popular resistance to an alien ऑर्डर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए राज्यों के अधिग्रहण के कारण सभी इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, परंतु ये रोष अवध में ज़्यादा व्यापक था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया था और कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं है, परंतु सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत से लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। इस भयानक उथल पुथल और भौतिक क्षति के कारण वहाँ के लोगों का, आम जनमानस का भावनात्मक लगाव नवाब के प्रति था और यही कारण है कि नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी समाप्त हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत से लोगों की रोजी रोटी भी छीन गई। अतः सभी ने विद्रोह में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया, जिससे विद्रोह एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। अवध के किसानों, तालुकदारों तथा जमींदारों की सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। अवध में लोगों की पीड़ा ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। फिरंगी राज के आगमन से वह सब कुछ बिखर रहा था जो लोगों के लिए बहुमूल्य था और जिसे वे प्यार करते थे। उनकी भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं, निष्ठाएं 1857 के विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त हो रही थीं। अवध के अधिग्रहण से केवल नवाब की ही नहीं गद्दी छीनी, बल्कि इस प्रदेश के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया गया। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। वे लोग सदियों से अपने सिपाही रखते थे, उनके अपने किले थे। यदि वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते और अपने तालुक का राजस्व चुकाते रहते
तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदारों के पास 200 से कम सिपाही नहीं होते थे। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अवध के शासन को समाप्त करने के तुरंत बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गईं और उनके दुर्ग किले को ध्वस्त कर दिया गया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की शक्ति एवं सत्ता को और अधिक क्षति पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एकमुश्त बंदोबस्त के नाम पर ब्रिटिश भू राजस्व लागू कर दिया गया। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का स्वामित्व नहीं था। उन्होंने बल और धोखे से उनको अपने प्रभुत्व में लाने का प्रयास किया। एकमुश्त बंदोबस्त के अंतर्गत तालुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से ये पता चलता है कि अंग्रेजी शासन से पहले तालुकदारों के पास अवध की 67% गांव थे, परंतु एकमुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे अधिक क्षति उठानी पड़ी। कुछ के तो आधे से अधिक गांव हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का विचार था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली स्वामी को सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में वृद्धि होगी। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में अवश्य वृद्धि हुई, परंतु किसानों के बोझ में कोई कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत से क्षेत्र का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग 30 से 70% तक बढ़ा दी गई थी। इसलिए न तालुकदार प्रसन्न थे और न काश्तकार। यही कारण है कि जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ तो इस क्षेत्र के किसानों ने, तालुकदारों ने, जमींदारों ने बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपनी भागीदारी दी। All the rebels of the 1857 uprising came from different social groups. They were queens, kings, nawabs, talukdars, jamindars, peasants, sepoys, and other ordinary people. Therefore, their methods may have been different, but the goal of all was the same, that it the freedom from the British rule. The ordinary people joined hands with the sepoys and attacked the white people. They destroyed and plundered all government buildings like the jail, court, treasury, post office and record office, and also residential structure related from the Europeans. They attacked, looted and killed a large number of Europeans. They legitimized their rebellion by seeking the blessing of Bahadur Shah Jafar, the last Mughal emperor. They also declared him as the king of India. The rebellion was extensive and targeted everything and everybody connected with the white men. Then even burned all government records. There was a general defense of all kinds and authority and hierarchy. The Hindus and the Muslims united to exterminate the Firangis, a derogatory term used to designate
Firangers as a foreigners. The ordinary people also joined the revolt. They attacked the rich moneylenders as they were seen as the local oppressors and the allies of the British. The Sepoys decided their own strategy. They were the makers of their own rebellion. In Meerut, a fakir rode on area with the help of an elephant and conveyed the message to the sepoys who visited him frequently. ब्रिटिश राज के समय देसी रियासतों पर अधिकार करने और समझौते का उल्लंघन करने के कारण अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों में इस बात का रोष था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने सभी बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर डाला। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी पहले की दुनिया को जीवित करना चाहते थे। विद्रोहियों को इस भय में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले थे। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। इस भय के कारण ही लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे एकजुट होकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। बहुत से स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन सभी शक्तियों के विरुद्ध आक्रमण का रूप ले लेता था जिनको अंग्रेजों का समर्थन या जनता का उत्पीड़न कर्ता के रूप में माना जाता था। कई बार विद्रोह और विद्रोही गांव के रसूखदार लोगों के बही खाते जला देते थे, उनके घर तोड़ फोड़ डालते थे। इससे पता चलता है कि विद्रोही सब उत्पीड़कों के विरुद्ध थे। विद्रोही वैकल्पिक सत्ता की तलाश में भी थे। उदाहरण के लिए दिल्ली, लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों पर ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद विद्रोहियों ने एक जैसी सत्ता और शासन स्थापित करने का प्रयास किया। भले ही यह प्रयोग सफल नहीं रहा, फिर भी इन कोशिशों से यह पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं शताब्दी के पूर्व ब्रिटिश शासन संरचना को फिर से स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी की, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन और भुगतान की व्यवस्था भी की। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सभी प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। ये जगत उन सभी बातों का प्रतीक बन गया जो उनसे छीन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, परंतु ज़्यादातर मामलों में वे संरचनाएं अधिक देर तक टिक नहीं पाईं और विद्रोह का दमन कर दिया गया।